سے نفرت و گھبراہٹ، ہمیشہ سستی و کاہلی. سحر حوادث کی علامات: خوفناک ڈراؤنے خواب میں ایسا لگے جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو. حالت بیداری میں کچھ آوازیں سنائی دے اور کوئی شخص نظر نہ آئے. کثرت وساوس، اپنے دوست و احباب کے بارے میں شکوک اور شبہات میں مبتلا ہونا. خواب میں یوں محسوس ہونا جیسے وہ ایک بلند چوٹی سے گرنے ہی والا ہو. خواب میں خوفناک حیوانات نظر آنا جو اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوں. سحر امراض کی علامات: کسی ایک عضو میں دائمی درد، مرگی کا دورہ، اعضاء جسم میں سے کوئی ایک عضو یا پورے جسم کا بے حرکت ہو جانا، حواس خمسہ میں سے کسی ایک کا معطل ہو جانا. سحر استحاضہ کی علامات: مرض استحاضہ یہ ہے کہ حیض کے دنوں کے بعد بھی عورت کو خون آتا رہنا. یہ خون ایک ماہ تک جاری رہ سکتا ہے اور اس کی مقدار میں کمی بیشی بھی ممکن ہے. جادو کے مختلف اقسام اور نفسیاتی امراض کا تقابلی جائزہ. سحر امراض کی علامات جو بتلائی گئی ہیں: جسم کے کسی عضو کا یا پورے جسم کا بے حرکت ہو جانا، حواس خمسہ میں سے کسی ایک کا کام نہ رکنا، مرگی کا دورہ پڑنا. یہ سب علامات جسمانی بیماریوں میں پائی جاتی ہیں اور جب ان کی وجوہات کا پتہ ہو تو اسے سحر یا جادو کس بنا پر کہا جا سکتا ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے جو دلائل آتے ہیں، ان دلائل سے ان علامات کو جادو یا سحر کہنا ممکن نہیں ہے. سحر حوادث کی جو علامات بتلائی گئی ہیں ان میں ڈراؤنے خواب میں ایسا لگے جیسے کوئی پکار رہا ہو. کثرت وساوس، خواب میں ایسا لگے جیسے وہ بلند چوٹی سے گرنے ہی والا ہو. خواب میں ایسے حیوانات نظر آئیں جو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور یہ سب علامات یا اضطراب کی حالت میں پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو علامات بتائی گئی ہیں، حالت بیداری میں کچھ آواز اور کوئی شخص نظر نہ آئے، اس کو ہیلوسینیشن کہا جاتا ہے. ہیلوسینیشن مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اپنے دوست و احباب کے بارے میں زیادہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا. یہ علامات ڈپریشن یا پیرینیڈ شیزوفرینیا میں پائی جاتی ہیں. تفصیلات کے لیے ناچیز کی کتاب دماغی صحت کا مطالعہ مفید ہوگا. سحر جنون کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں ان میں بے تکی باتیں کرنا، ایک جگہ نہ ٹھہرنا، کسی خاص کام کو جاری نہ رکھنا. اگر سحر جنون زیادہ نہ ہو تو منہ اٹھا کر چلتے رہنا. تمام علامات مانیہ مرض میں پائی جاتی ہیں. اور پریشان خیالی، حواس باختگی، شدید نسیان اور اپنی ظاہری شکل و صورت کا خیال نہ رکھنا. یہ علامات عام طور پر ڈپریشن میں بھی پائی جاتی ہیں. اور غیر آباد جگہوں پر سو جانے کی علامات شیزوفرینیا میں پائی جاتی ہیں. سحر محبت کی علامات میں حد سے زیادہ محبت کرنا، جماع کی شدید خواہش کا پیدا ہونا، بیوی کے بغیر بے صبری کا مظاہرہ کرنا. ایسی علامتیں ہائپومینیا میں بھی پائی جاتی ہیں. سحر خمول کی جو علامات بتلائی گئی ہیں ان میں خلوت پسندی، خود غرضی، مکمل خاموشی، پریشان خیالی، ہمیشہ سردرد، محفلوں سے کراہت، سستی. ان علامات پر اگر غور کیا جائے تو علامات ایکسوزوفینیا اور ڈپریشن مرض میں بھی پائی جاتی ہیں اور ان بیماریوں کی وجوہات معلوم ہیں اور ان بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے. ہمیشہ سردرد کی علامت ڈپریشن نامی مرض کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. سحر تفریق کی جو علامات بتلائی گئی ہیں مثلا محبت کا اچانک بغض و نفرت میں تبدیل ہو جانا، میاں بیوی کے درمیان شکوک و شبہات کا پیدا ہو جانا، دونوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کے عذر کو قبول نہ کرنا، رائے کے معمولی فرق کو زبردست اختلاف بنا دینا یا تصور کرنا چھوٹا سا سبب اختلاف کو پہاڑ تصور کر لیا جائے. یہ سب علامتیں ڈپریشن اور اسکیزوفرینیا میں بھی پائی جاتی ہیں. بیوی کا خاوند کو بالکل بدشکل اور خاوند کو بیوی کو بدصورت تصور کرنا، اپنے ساتھی کے ہر کام کو ناپسند کرنا، یہ علامتیں ڈپریشن نامی مرض کی ہیں. عام طور پر میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اوپر بتلائی گئی وہ تمام علامات اور اس کے علاوہ دیگر کئی علامتیں جو نفسیاتی امراض میں بھی پائی جاتی ہیں مختلف نفسیاتی اثرات کی وجہ سے رشتہ داروں اور دوستوں کے درمیان نااتفاقی پیدا ہونے کے مختلف عوامل اور وجوہات ہیں، کیونکہ مرض کی حالت میں ہونے والی حرکتوں سے لوگوں میں ناچاقیاں بڑھ جاتی ہیں. تفصیلات کے لیے احقر کی کتاب دماغی صحت کا مطالعہ کیجیے. سحر تخیل یعنی وہم، چھوٹی چیز کا بڑا اور بڑی چیز کا چھوٹا دکھائی دینا، اسے مائرکوپسیا اور مائرکوپسی کہا جاتا ہے. یہ ٹیمپورل لوب ایپیلوپسی میں بھی پائی جانے والی علامات ہیں. رسی کا سانپ نظر آنا ایسے ایلیوشن کہتے ہیں اور یہ علامت بھی نفسیاتی امراض میں بھی پائی جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ ہیلوسینیشن، کوئی چیز کے موجود نہ ہونے کے باوجود بھی وہ چیز نظر آنا یا حقیقتاً کوئی آواز نہ پائے جانے کے باوجود آواز سنائی دینا، کسی خوشبو کے نہ ہونے کے باوجود خوشبو سنگھائی دینا اور کوئی شے مس نہ کرنے کے باوجود
वो मस होती हुई महसूस होना, किसी चीज़ का उसे ना छूने के बावजूद यूँ महसूस होना कि मुझे छू रही है। इस किस्म के अलामात साइकोसिस मर्ज़ की हैं। आम तौर पर उन अलामात को जिन की तरफ मंसूब किया जाता है, हालांकि बेआइन ही ये अलामात इंसान में मुख्तलिफ़ किस्म की साइकोट्रोपिक ड्रग्स जैसे गांजा, चरस, अफ्यूम, हेरोइन और शराब देकर भी पैदा की जा सकती हैं, और ख़ुसूसन ये अलामात साइज़ोफ्रेनिया मर्ज़ की हैं। उसमें ऐसी चीज़ों का एहसास होता है जिसका फिल हकीकत कोई वजूद नहीं होता, जैसे किसी की आवाज़ या घंटी सुनाई देना, या करीब में किसी के ना होने के बावजूद यूँ महसूस होना कि पलंग के नीचे या कमरे में कोई मौजूद है। मरीज़ को गैर मौजूद शय की बू आना, कुछ लोगों को आंखों के सामने कुछ ना होने के बावजूद देव, भूत या आदमी नज़र आना, कोई बड़ी शय छोटी और छोटी शय बड़ी नज़र आना, इंसान शैतान की तरह नज़र आना, या यूँ महसूस होना कि उसके जिस्म पर कीड़े रेंग रहे हैं। लटकाया, उसने शिरक किया। कफ़ा बिल मरी कज़िबा अन युहद्दिस कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया सनुरीहिम आयातिना फिल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़ अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अनक़रीब हम उन लोगों के अंदर और उनके अतराफ़ ऐसी निशानियाँ बताएंगे जिससे उनके अंदर हक़ वाज़ेह हो जाएगा। MRI, CT स्कैन, आगे PET स्कैन, स्पेक्ट, अब इससे हम ये चीज़ें दिमाग में की जो चेंजेस आ रहे उसकी स्टडी कर सकते हैं। दिमागी सुकून की हालत में क्या चेंजेस है, दिमाग के कौन से हिस्से में क्या हो रहा है, क्योंकि आपका ये जो पूरा दिमाग है इसमें हर चीज़ की हरकत के लिए अलग अलग खलिए है। हाथ की हरकत के लिए अलग मिलेंगे आपको, पैर की हरकत के अलग, ज़बान की हरकत के अलग, चेहरे के अलग अलग हरकत के लिए अलग, जितने भी खलिए हैं ये अलग अलग आपको मिलेंगे, और उनका कंट्रोल सब दिमाग से है, और कौन से हिस्से में कौन से हालत में, फिर जज्बात के लिए अलग हिस्से हैं, तो वहाँ भी हमको ये स्टडीज़ इसमें मिलती है। तो मैं तो समझता हूँ ये निशानियाँ हमको आज अल्लाह ताला बतला रहे हैं इसमें आपके अंदर, और आफाक में की निशानियाँ तो आपके अभी भी समझ में आ रही है, उसकी तफसील में अभी नहीं जाएंगे। आपको ये चीज़ें और समझना इदराक, और इदराक एक ऐसा अमल है जिसमें खुस्सी उज़्व मसलन आँख, हिस्सी उज़्व मसलन आँख, नाक, कान से आने वाले मुहर्रिकात को दिमाग में बामाना शक्ल मिलती है। ये शक्ल देने में दिमाग में पहले से मौजूद इस मुहर्रिक की मालूमात मदद देती है। उससे ये जाहिर होता है कि अगर हम कोई चीज़ देखते या सुनते हैं तो उसको समझने के लिए उस चीज़ के बारे में या उस जैसी कोई चीज़ के बारे में हमारे दिमाग में खाका होता है जो उस चीज़ को समझने में मदद देता है। सब हिस्से उज़्व इदराक में मदद करते हैं, और इदराक का अमल कोई एक या दो हिस्से उज़्व के ख़राब होने की वजह से मुतासिर हो सकता है, लेकिन बंद नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे रास्तों से हिस्सों दिमाग को मिलती है और उसकी शनाख्त में मदद करती है। इदराक के नकाइश, शक्ल बिगाड़, धूप का फ़रेब। एहसास या हिस्स की शक्ल में बिगाड़ दो तरीके से होता है। हिस्स की शिद्दत में कमी या ज़्यादती। शिद्दत में कमी कहलाती है। इसमें क़ुव्वत हिस्स कम हो जाती है और एहसास भी कम हो जाता है। इस हालत में साइकोलॉजी थ्रेट बढ़ जाता है। ऐसा डेलीरियम में हो सकता है। साइकोलॉजी शिद्दत में ज़्यादती में कम आवाज़ में ज़्यादा सुनाई देती है, और रंग भड़कीले और तेज़ नज़र आते हैं, और मामूलीपन की चौपन भी बहुत ज़्यादा दर्द पैदा करती है। जब आदमी बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है तो ये हालत पैदा होती है। एक्टोब कैफियत, माहियत या खूबी में बिगाड़। कोई दवा या जहरीली चीज़ खाने में आ जाने की वजह से इदराक की कैफियत, माहियत या खूबी में बिगाड़ पैदा होता है। मसलन आम तौर पर दस्त में दी जाने वाली दवा फ्लाइगिल, जिसमें मेट्रोनाइडेजोल नामी केमिकल होता है, खाने की वजह से ज़बान में धाती मज़ा मेटेक्लिक टेस्ट आता है। सेंटोनिन नामी जहरीली चीज़ खाने में आ जाने की वजह से आदमी को हर चीज़ पीली नज़र आती है। हिस्सियाती धोखा या फ़रेब दो तरीके के होते हैं। ये हो चुका है।
इल्यूज़न, इसमें कोई बैरूनी शय जिसका वजूद हकीकतन है लेकिन वो चीज़ कोई दूसरी चीज़ की शक्ल में नज़र आती है, मसलन रस्सी का सांप नज़र आना। ये इंडिक्यूट सेंसोरी इनपुट मसलन अंधेरी की वजह से हो सकता है। अफेक्ट या एतराफ़ अफेक्ट अफेक्ट या अतराफ़ के माहौल को देखने का नज़रिया, मसलन जंगल में रात में चलते वक्त कोई दरख्त की टहनी ऐसी मालूम होती है जैसे कोई जानवर छुप कर बैठा हुआ है। तसव्वुर, जैसे बादलों में कोई जानवर या हाथी ही की शक्ल नज़र आना। ज़रूरत, जैसे भूखे को कोई चीज़ में खाना नज़र आना। इल्यूज़न आम इंसान में पाए जाते हैं, उनका सिर्फ नफ्सियाती मरीज़ों में पाया जाना ज़रूरी नहीं है। इसमें क़ुव्वत ज़ायक़ा बदल जाती है जिसकी वजह से मरीज़ को ये शक पैदा हो सकता है कि उसके खाने में जहर मिला हुआ है। इस किस्म में मरीज़ की क़ुव्वत शामा पर असर होता है और उसको मुख्तलिफ़ किस्म की बू आती है जो सिर्फ उसी को महसूस होती है, उसके अतराफ़ वाले उसको महसूस नहीं कर सकते। इसमें मरीज़ को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसको छू रहा है या कोई कीड़ा उसके जिल्द के नीचे घूम रहा है। मरीज़ ऐसा भी महसूस करते हैं कि उनके उज़्व जिस्म के अंदर टूट रहे हैं। इस किस्म के हेलुसिनेशन नशे के आदी मरीज़ों में ज़्यादा होते हैं। हेलुसिनेशन किसी मुंतज़िम शक्ल या मुकम्मल आवाज़ में सिर्फ रोशनी या न समझने वाली आवाज़ों की शक्ल में हो सकते हैं। हेलुसिनेशन दो तरीक़ों के हो सकते हैं। सिंपल, इसमें सिर्फ एक ही हिस्स का इस्तेमाल होता है, जैसे सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती हैं या कोई दिखाई देता है। कम्प्लेक्स, इसमें बैक वक्त दो या दो से ज़्यादा हिस्सी क़ुव्वत शामिल होती है, जैसे मरीज़ ये देखता है कि कोई जंगल में आग लगी है, उसी वक्त उसे लकड़ियाँ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और आग की बू भी आती है। ट्रू हेलुसिनेशन, इसमें मरीज़ को ये समझ नहीं होती है कि उसे जो नज़र आ रहा है या सुनाई दे रहा है या जो महसूस कर रहा है ये उसकी खाम ख्याली है और वो उसके एहसास के मुताबिक काम करता है। फैल्स हेलुसिनेशन, इसमें मरीज़ को ये समझ होती है कि उसे जो नज़र आ रहा है या सुनाई दे रहा है या वो जो महसूस कर रहा है ये उसकी खाम ख्याली है। हाइफोनो, इस किस्म में मरीज़ को जब ये कोई आवाज़ जैसे कोई परिंदा चहचहा रहा हो तो वो ये महसूस करता है कि परिंदे की आवाज़ में खुदा या कोई बुज़ुर्ग उससे बात करते हैं या रहबरी कर रहे हैं। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, इस किस्म में अगर मरीज़ कोई आवाज़ सुनता है तो हर लफ्ज़ के साथ उसको ऐसा महसूस होता है कि हर लफ्ज़ के बाद कोई उसके सर पर मार रहा है। आदमी के हिस्सी दायरे के बाहर की चीज़ों को महसूस करना एक्सट्रम कंपाइन हेलुसिनेशन कहलाता है। इसमें मरीज़ दीवार के उस तरफ की बातें सुन सकता है या उसे उस शख्स की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कई किलोमीटर दूर है। वजूहात, नंबर 1, दवाइयाँ। ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनके इस्तेमाल करने पर हेलुसिनेशन हो सकते हैं, मसलन LSD, एम्फीटेमाइन यानी गांजा, चरस, शराब वगैरह। नंबर 2, ख़यालात, एहसासात। जिस तरीके के ख़यालात जहन में बढ़ जाते हैं उनके मुताबिक मरीज़ को चीज़ें नज़र आती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं। नंबर 3, हाइफोनोसिक और ट्रेंस टेस्ट। ऐसे लोग जो नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर होने में होते हैं उन्हें ताकतवर मशवरे देकर उनमें हेलुसिनेशन पैदा किए जा सकते हैं। नंबर 4, दिमाग की गांठ या ज़ख्म। दिमाग में मुख्तलिफ़ काम अंजाम देने के लिए महसूस हिस्से या मरकज़ होते हैं।